Hello friends, in this video I am going to explain the history and development of yoga. Yoga का इतिहास and विकास. Images of a meditating yogi have been found in the excavations of the Indus Valley civilization, which may be 6 to 7,000 years old. ऐसा माना जाता है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का खुदाई किया गया था तब एक ध्यान युगी का चित्र पाया गया था और वो चित्र 6-7 हजार सालों का पुराना हो सकता है. The earliest written accounts of yoga are found in the ऋग वेद. योगा के बारे में सबसे पहला लिखित विवरण पाए जाते हैं प्राचीन पवित्र ग्रंथ ऋग वेदों में. The first yoga text dates to around the 2nd century BC by Patanjali and prescribes Ashtanga Yoga to quiet one's mind and merge with the infinite. और उसके बाद लगभग 2nd century BC में महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की रचना की और इसीलिए उनको योग का फादर माना जाता है. पतंजलि ने ही अष्टांग योगा को निर्धारित किया जिससे मन शांत हो जाता है और ईश्वर के अनंत ज्ञान को प्राप्त करते हैं. The first full description of the principles and goals of yoga are found in the Upanishads, thought to have been composed at various times starting from 2000 BC. योगा के नीति और लक्ष्य का फुल डिस्क्रिप्शन पाया गया था उपनिषद में 2000 BC के आरंभ में. The Upanishads are also called Vedanta since they constitute the end or conclusion of the Vedas, the traditional body of spiritual wisdom. उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि उपनिषद से वेदोस का अंत किया था. Vedas means what? Vedas means body related spiritual wisdom. Vedas means body related spiritual wisdom. Later on, in the Bhagavad Gita, there is mention of several types of yoga. भगवद गीता में भी भिन्न भिन्न टाइप्स का योगा के बारे में उल्लेख किया गया. In it, Krishna describes the following yogas. भगवद गीता में लॉर्ड कृष्णा ने 3 तरह का योगा के बारे में बताया. नंबर 1 कर्म योगा, द योगा ऑफ एक्शन. नंबर 2 ज्ञान योगा, द योगा ऑफ नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल एंडेवर. नंबर 3 भक्ति योगा, द योगा ऑफ डिवोशन टू ए deity. Now we will know about the father of modern yoga, Patanjali. Patanjali in the Yoga Sutras presents the goal of yoga as the cessation of mental fluctuations, an achievement which gives rise to the possibility of stable meditation leading to deeper states of absorption, dhyana और समाधि. महर्षि पतंजलि उनकी योगा सूत्र में योगा के लक्ष्य को मानसिक उतार चढ़ाव की समाप्ति कहा. दैट इज मेंटल फ्लक्चुएशंस, जिससे स्टेबल मेडिटेशन करना संभव होता है और यही एक
और यही एक व्यक्ति को ध्यान या समाधि के अवस्था, गहरी अवस्था में ले जाते हैं। This requires considerable restraint, yama, and self-discipline, नियमों, और इसके लिए एक व्यक्ति को काफ़ी संयम और सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत होता है। पतंजलि's yoga is also known as Raja Yoga or Ashtanga Yoga in order to distinguish it from Hatha Yoga. पतंजलि के योगा को राजा योगा और अष्टांग योगा कहा जाता है, जो हठ योगा से अलग है। अब हठ योगा क्या है? हठ योगा क्या है? हठ योगा का अर्थ है श्वास को अंदर खींचना और बाहर निकालकर रोके रहना। हठ योगा का फिर मैं बताती हूँ। हठ योगा का अर्थ क्या है? हठ योगा का अर्थ है सांस को अंदर खींचना और बाहर निकालकर रुके रहना। Maharishi Patanjali is considered to be the father of modern yoga. He wrote the Yoga Sutras, a collection of 195 aphorisms that form the foundation of yoga philosophy. These sutras provide a comprehensive guide to the practice of yoga, including the 8 limbs of yoga, also known as Ashtanga Yoga. मॉडर्न योगा का फादर पतंजलि ने, मॉडर्न योगा का फादर महर्षि पतंजलि ने 195 फ्रेजेस और वचन उनके योगा सूत्रस में शामिल की, जिन्हें योगा दर्शन का स्तंभ माना जाता है, फाउंडेशन ऑफ योगा फिलोसॉफी. These sutras provide a comprehensive guide to the practice of yoga, including the 8 limbs of yoga, also known as Ashtanga Yoga. इस योग सूत्र में अष्टांग योगा भी शामिल है. महर्षि पतंजलि इज ऑल्सो नोन एज गुणार्दिया और गुंका पुत्र. महर्षि पतंजलि को गुणार्दिया और गुंका पुत्र भी कहा जाता है. He is also known as अष्टांग योगा गुरु, और उनको अष्टांग योगा गुरु भी कहते हैं. He authored 2 great Hindu classics. The first one is Yoga Sutras, also known as Yoga Darshana, and second one is Mahabhashya, is known as Great Commentary. महर्षि पतंजलि ने 2 हिंदू क्लासिक्स लिखी है. एक है योगा सूत्रस और योगा दर्शन, एंड अनदर इज महाभाष्य. दूसरा क्या है? महाभाष्य. पतंजलि ने आयुर्वेदिक मेडिसिन पर एक आर्टिकल भी लिखा. ही वॉज ए ग्रेट ग्रामरियन एंड हिज Mahabhashya or great commentary on Panini's grammar was the first grammar written for any language. वो एक बड़ा ग्रामरियन भी थे और उसने पानिनीज ग्रामर पर भी कोई भाषाओं में चर्चा किया. Written for any language. In the Mahabhashya, he defined the rules of Sanskrit grammar. महाभाष्य में संस्कृत ग्रामर का रूल्स भी बताया. पतंजलि presented an 8-limbed system of yoga और अष्टांग योगा. अब अष्टांग योगा क्या होता है? मन के अज्ञान रूपी प्रवाह को स्थिर कर ज्ञान रूपी प्रवाह की ओर ले जाना ही अष्टांग योगा होता है. अष्टांग योगा का अंग क्या क्या होता है? अष्टांग योगा का अंग होता है
कुल 8 प्रकार: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है यम एंड नियम, जिसका 10 कमांडमेंट्स भी होता है। यमों और नियमों क्या होता है? यमों का डेफिनेशन क्या है? नियमों का डेफिनेशन क्या है? यमो मीन्स मॉरल डिसिप्लिन। यमो मीन्स मॉरल डिसिप्लिन। यमो 5 टाइप्स का होता है और नियमों 5 टाइप्स का होता है। यमों का 5 टाइप्स है: अहिंसा, सत्य, औस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह यानी कि लालच नहीं करना। एंड नियम क्या होता है? नियम फोकस करता है व्यक्ति का पर्सनल कंडक्ट पर। और 5 नियमस है। 5 नियमस क्या क्या है? पहला है क्लीनलीनेस और प्योरिटी। सेकेंड, कंटेंटमेंट और संतोष। थर्ड, तपस मीन्स सेल्फ डिसिप्लिन। फोर्थ, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड फिफ्थ, सरेंडर टू गॉड। फिफ्थ क्या होता है? सरेंडर टू गॉड। महर्षि पतंजलि ने राजा योगा के बारे में मेंशन किया, which is essentially concerned with mind control, meditation and self study. The focus is on the mind. अब राजा योगा क्या है? राजा योगा मीन्स मेडिटेशन के द्वारा मन की चंचलता को दूर कर मन को काबू में लाना। विथ माइंड कंट्रोल, मेडिटेशन एंड सेल्फ स्टडी, मन को काबू में लाना और सेल्फ स्टडी करके मन को हाई पावर से एकाग्र करना या हाई पावर से जुड़ना। तो राजयोग सिर्फ और सिर्फ मन पर फोकस डालता है। द फोकस इज ऑन द माइंड।